ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰਵੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी महान कुर्बानी और जिस दे लिए कह लिया जाए कि दूजियां दे गुनाहां दे पश्चाताप विच उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। असी थोड़ी देर तक गलबात करांगे और उसके कई पहलू हैं, कई परतां हैं, कई तह हैं जिहड़ियां साडी लीडरशिप ते साड़ी सोच ते और साड़ी अपने करन दे काम करन दे ढंग दे उत्ते बहुत ही गंभीर अते तिखियां टिप्पणियां जिहड़ियां हन अंकित करदियां हन। विसाहघात, विश्वासघात, धोखा अते अपनियां वल्लों ही विश्वासघात दी एक बड़ी ही अजब गाथा है जिहड़ी असी थोड़ी देर तक आप नाल सांझी करांगे। साडी मुराद है पंथ दे महान सपूत सरदार दर्शन सिंह फेरूमान जिन्हां ने अरदास की महत्ता, अरदास की वक़्त, अरदास की कीमत, उसकी आबरू, उसते विश्वास और भरोसा रख के उन्होंने वो महान कुर्बानी की। पर शायद किसी पंथ के नुक्कर विच भी इस महान शहीद का नां नहीं लिया जा रहा। कौन जिम्मेवार है, की कारण है, उसका कारण की है, और अज की इस वार्ता दे विच शायद वो कारण भी स्पष्ट हो जाणगे जिस वजह करके उस महान शहीद नूं बिल्कुल ही अणगोलियां कीता गया है और कीता जा रहा है। थोड़ी देरी तक असीं उसके बारे गल करांगे। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान जिन्हां ने 15 अगस्त 1969 नूं मरण वर्त रखिया और पंथ दे विच शायद दूसरी बार, इस तो पहला नांदेड़ दे एक गरीब सिख भाई नंद सिंह ने मरण वर्त रख के शहीदी दिती सी और ये दूसरे शहीद हैं जिन्हां ने अरदास की और उसके उत्ते पूरी निभाई। पर असीं उन्हां नूं बिल्कुल अणगोलियां कर दिता, दरकिनार कर दिता। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल है, ना केवल उन्हां दी शहादत नूं दरकिनार कीता बल्कि वो कारण जिन्हां दी खातर उन्हां ने शहीदी दित्ती सी उस नूं बिल्कुल पीढ़े तरीके दे नाल दबा के और ख़त्म कर दिता गया ताकि उस नूं कोई याद भी ना कर सके। एक बहुत ही अजब वर्का है साडे इतिहास का, साडे अपने कौमी आगुआं दा और महान शहीदां नूं याद करन दा। ये जो टिप्पणी है अज दे इस प्रोग्राम विच असी तुहाडे नाल सांझी करांगे और नाल ही आस करांगे कि तुसीं इस मसले नूं बहुत ही गंभीरता दे नाल देखो। ये विशा मंग करता है तुहाडे कोलों कि जिस शख्स ने निज की खातर नहीं, किसी अपने लालच की खातर नहीं, बल्कि दूसरे आगुआं दे गुनाहां दे पश्चाताप विच
ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਚੁਰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਰਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਫੋਰਸਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਔਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਸੀਮ ਸੱਜਾਦ, ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਸਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ
एक वफद लुधियाने आया पाकिस्तान तो और अपनी हवेली नूं देखण लई जिहड़ी उन्हां दा जद्दी घर सी उहनूं वेखण लई लुधियाने दे किसी पिंड विच गया। जदों उत्थे जाके वो अपने घर गया तो बहुत ही भावुक हो गया और कहन लगा कि मैं इस टुट्टी हुई हवेली दी एक इट लिजा सकदा। उन्होंने कहा जरूर लै लो। तो मित्र अखबार नवीस सी उसने पूछया कि तुसी इस इट नूं की करोगे, तुसी इत्थे आए हो और सौगात के तौर पर इट लैके जा रहे हो, इस नूं लिजा के की करोगे। उसने नम अखां नाल कहा इस इट दा अद्धी इट मैं अपने वड्डे भरा नूं देंगा और अद्धी इट मैं अपने कोल सांभ के रखांगा। सो उस नामा निगार ने, उस अखबार नवीस ने, पत्र प्रेरक ने दूसरे दिन जिहड़ी खबर छापी सी उहदा टाइटल दिता सी बिल्डिंग रिलेशनस ब्रिक बाई ब्रिक। ये भावना है 47 दे विच भी याद है तेजा सिंह साबर ने पंथक कवि उन्होंने एक कविता दे विच 2 लाइनां लिखियां सी कि मां कदे फेर पंजाब नूं जावांगे, तो उसके जवाब विच बरकत ने जवाब दिता सी रब चाहया ते छेती चन्ना मुड़ पंजाब नूं जावांगे। सो ये जिहड़ियां भावनावां है ये आपसी संबंधां नूं भी ताजगी दिंदियां हन और एक इन्हां दी कीमत बिल्कुल अपनी है। तीसरी बहुत छोटी जी सुर्खी है हरमंदर साहब दी परंपरा है। सचखंड श्री हरमंदर साहब दी परंपरा है शुरू तो, क्योंकि गुरु साहब दे समय तो सिख दिवाली और विसाखी दे उत्ते इकट्ठे हुंदे सन। मौसमी त्यौहार करके एक 2 मौके सन जिहड़ा हर किसी नूं पता है, सारे दुनिया दे विच बल्कि सारे हर हिंदुस्तानी नूं, हर भारतवासी नूं, हर पंजाबी नूं पता है कि ये कदों होएगा। एक कुदरत दे नियम है, हर एक नूं पता है मस्या कदों होएगी, संग्रांद कदों होएगी। सो ये दिन जिहड़े सी जोड़ मेलिਆਂ ਲਈ निर्धारित कर दिते गए और अमृतसर साहब दे विच इस दिवाली दे मौके दे उत्ते कई किस्म के इतिहास और इतिहासक कांड भी जुड़ गए, जिन्हां साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का वापस अमृतसर साहब परतना और भाई मनी सिंह जी की दिवाली की खातर ही उत्थे जोड़ मेल करन दे ना कर सकण कारण सरकार नूं अदायगी ना करनी उन्हां दी शहादत का ज़ाहिरा कारण बनिया। और ये परंपरा हरमंदर साहब की दीपमाला की सदियां तो चली आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल सी कि 1984 विच जो कुछ होया उस दे इवजाने दे विच ये दिन नहीं मनाया जाना चाहिए, ये दीपमाला नहीं करनी चाहिए। दरअसल जिहड़ियां परंपरावां हन वो कौमी विरासत ही इसे तरह की है कि नालों नाल हर चीज़ चलती है, परंपरावां बदली नहीं होंदियां। जदों नादर ने हमला किया सी तां उसने पुछया सी जदों सिखां बारे, तां लाहौर के गवर्नर ने उसनूं दस्सिया सी कि ये सिख भी बड़े अजीब हन, जन्मे खुशी न शोक मरे ते, ना इन्हां नूं जन्म दे उत्ते खुशी मनाते हैं ते ना ही किसी के चले जाण ते अफसोस करते हैं। उसने बहुत कमाल की गल कही, सिंह सिंघनी जो मर जात बांट तुरत कड़ा बनात। जदों कोई चलाना कर जाए तो फिर कड़ा वंडते हैं ते नाल पढ़ते हैं आनंद पिया मेरी माए। ये परंपरावां हन जिहड़ियां सहज दे विच रहण दी गल कीती। बाकी अफसोस नूं किस तरीके दे नाल याद है जदों अमृतसर साहब दे विच नकली निरंकारियां ने कांड किया सी तां उहदे ते कोई शोक एकत्रता रखी गई। तारा सिंह कामल ने उस एकत्रता दे विच खड़े होकर कहा सी कि जेकर कोई लूंबड़ धोखे नाल शेर दे बच्चे मार देण तां फिर जंगल दे शेर की करते हैं, वो मिल के सोग मता करते हैं या की करते हैं। सो परंपरावां दे विच छेड़छाड़
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਔਰ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਕੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧੱਬੇ, ਉਹ ਦਾਗ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। 74 ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। 1886 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਰਪੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।
मांडले की जेल विच, मलेशिया की मांडले की जेल विच सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने फिर इस बुनियादी हक लई, इस बुनियादी आज़ादी लई उन्होंने मर्द वर्त रखिया और 21 दिन की जदोजहद के बाद सरकार झुक गई और इजाज़त दी कि तुसी कछहरा पा सकते हो। देश परतन तो बाद उन्होंने किरती किसान मूवमेंट दे विच भी हिस्सा लिया। 2 दफ़ा 1951 तो लैके 1964 तक वो राज्य सभा के मैंबर भी रहे। यानी कि हर पास्यों परपक्क और दृढ़ इंसान, पर उन्हां दे मन नूं बहुत टीस लगी, बहुत दुख होया जदों बार बार श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते सोहां चुक के मरन दे, सड़ मरन दे वायदे कई दफ़ा ये ड्रामे किए गए। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान इस गल तो बहुत ज़्यादा दुखी सन कि तुसी राजनीति करनी है, जो मर्जी करो, पर अकाल तख्त साहब दे उत्ते अरदासा ना करो, और जे करना है केवल उही करे जेड़ा इस ते पूरा उतर सकता है। पर गल इत्थे ही नहीं मुक्की। साडे इतिहास दे विच एक होर काला अध्याय जुड़िया जदों संत फतेह सिंह जी ने कई दफ़ा सड़ मरन की गल की और उसके बाद उन्होंने इत्थे तक कर दिता कि अकाल तख्त साहब दे नाल अगन कुंड, हवन कुंड बना दिते और उन्हां दे उत्ते पक्के तौर दे उत्ते लिख दिता गया कि इन्हां पावन हवन कुंडां दे विच, अगन कुंडां दे विच श्रीमान संत बाबा फतेह सिंह जी ने सड़ मरना सी। ये हवन कुंड उत्थे बना दिते गए और जेड़े कि सारियां परंपरावां नूं एक किस्म दे नाल बहुत ही मूँह चढ़ा रहे सन कि किस तरीके दे नाल जे अरदास भी पूरी नहीं कीती तां उसके बावजूद ये हवन कुंड बनाने और श्री अकाल तख्त साहब दे नाल और फिर उस तो गीदी हो के भज्जण दे बावजूद उन्हां दे उत्ते पक्कियां तौर दे उत्ते लिख देना कि इन्हां हवन कुंडां दे विच संत बाबा फतेह सिंह जी ने सड़ मरना सी। ये कौमी वकार नूं पूरी तरह चैलेंज सी। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल उस दे उत्ते पक्के तौर दे उत्ते संत फतेह सिंह जी, संत चन्नन सिंह जी का पूरी तरह उन्हां दी पकड़ और जकड़ सी और किसी भी विरोधी गल नूं कोई सुनन लई तैयार नहीं सी। शायद इतिहास मुड़ मुड़ अपने आप नूं दोहरांदा है। इस चुनौती नूं सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने कबूलिया। एक साहित्य दे विच और इतिहास दे विच एक लफज वरतिया जाता है एक्सपीएटरी, जेड़ा किसी दूजे दे गुनाहां लई अपनी कुर्बानी दवे। ये लफज हज़रत ईसा मसीह दे बारे वरतिया जाता है और ईसाई मनते हैं कि दूजियां दे गुनाहां दे पश्चाताप विच ईसा मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान की कुर्बानी भी बिल्कुल इसे ढंग दी सी। पर अजे इस कांड दे, इस गाथा दे एक होर बड़े दुखदाई पहलू की गल है कि सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने शहादत किस वजह करके दी। उन्हां दी शहादत सीधे तौर दे उत्ते उस समय दी वक्ती अकाली लीडरशिप दे अरदासां करके मुकरण और भज्जण दे उत्ते उन्हां गुनाहां दे पश्चाताप विच सी। पर चूंकि कब्जा सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उस समय दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत के बाद
जो मता पास किया गया वो एक बहुत वड्डा कलंक और शहीद की शहादत नूं पूरी तरह रोल देण वाला सी। एक वक्फे दे बाद असीं तुहानूं सरदार दर्शन सिंह फेरूमान की वसीयत और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पास किया होया मता और उसके बाद उस मते का की हशर होया ये तुहाडे नाल जरूर असीं विचार साझे करांगे। और तुसीं सानूं नाल नाल कॉल भी कर सकते हो, असीं अपनी लाइन भी खोल देंगे ताकि तुसीं अपने विचार भी जरूर दे सकोगे। एक वक्फे दे बाद मुड़ हाज़र होंगे। गेट पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत श्रोता जनां दा वक्फे दे बाद निੱਘਾ स्वागत है। अज असीं अकाली दल दे सुनहरी इतिहास के काले वरके का जिक्र तुहाडे नाल करन जा रहे हैं। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत का वो हिस्सा, वो चैप्टर अपनी गाथा पुकार पुकार के सुना रहे हैं और रहंदे दुनिया तक ये इतिहास का अंग और ये जो होया ये मिट नहीं सकेगा। जदों बार बार श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते सौहां चुक के सड़ मरन दे वायदे किए गए, अखीर सरदार दर्शन सिंह फेरूमान जिन्हों ने सारी जिंदगी जदोजहद की, भावें वो किसी भी रूप में सी, पर वो कुर्बानियां दा उन्हां दा इतिहास सी। उन्होंने ऐलान किया कि हुण बर्दाश्त नहीं हुंदा। अकाल तख्त साहब की यह बेहुरमती हुण बर्दाश्त तो बाहर है और उन्होंने ऐलान किया कि वो 15 अगस्त 1969 नूं मरण वर्त रखणगे और वो मरण वर्त ही होएगा जद तक कि वो शरीर त्याग नहीं देणगे। जदों उन्होंने ऐलान किया उन्हां दा मजाक उड़ाया गया, बहुत कुछ किया गया। ये पंथ दोखी है, ये सरकार दा एजेंट है, ये पंथक एकता दे विरोध विच है। आखिर सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने अरदास करके अपना वर्त शुरू किया और उस वेले दे जिहड़े सरकारी अफसर सी उन्हां दी ड्यूटी लगी। उन्होंने आके सरदार दर्शन सिंह फेरूमान नूं कहा कि सानू हुक्म है कि तुहानू फोर्स फीडिंग कराई जाए, जबरदस्ती तुहानू खाना दिता जाए। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने कहा कि फोर्स फीडिंग वो लैंदे हन जिन्हां दा दिल बेईमान होए। अगर तुसी जबरदस्ती करोगे तो जिहड़ा बर्तन तुसी दिओगे मैं वो चुक के अपने सिर च मारांगा, जे होर जबरदस्ती करोगे तो फिर मैं दीवार दे विच अपना सिर मार देंगा। उन्हां पुलिस अफसरां ने इनकार कर दिता। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान की हालत बिगड़ गई। उन्होंने अमृतसर अस्पताल दे विच भर्ती किया गया और दिन पर दिन उन्हां दी हालत बिगड़ती जा रही सी। पटना साहब तो भाई मान सिंह जी नूं भी बुलाया गया और भाई मान सिंह ने दसिया कि नाल दे कमरे विच कुछ सलाह हो रही सी कि सवेरे सिंह साहिबान जाके सरदार दर्शन सिंह फेरूमान नूं वर्त तोड़न दा हुक्म देणगे। भाई मान सिंह चुप चपीते उत्थों खिसक आए और ये गल पूरी ना हुई। सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी ये गए सरदार दर्शन सिंह फेरूमान को और कहा कि मरण वर्त तोड़न दे बारे गल की। उन्होंने कहा तुसी सिंह साहब हो, तुहानू तां अरदास की महत्ता का पता है। खैर जदों हालत विगड़ गई बहुत और लग रहा सी कि हुण उन्हां दे स्वास आखिरत तक पहुँच चुके हैं, उस वेले संत फतेह सिंह फुल्लां दा टोकरा लैके अस्पताल पहुँचे। जिस वेले उन्होंने अंदर कदम रखा अमृतसर की बत्ती बंद हो गई और दर्शन सिंह फेरूमान दे नाल मुलाकात ना हो सकी। सरदार कपूर सिंह ने इस दे बारे लिखिया कि जिहड़ी गल संत फतेह सिंह बार बार कहते सन कि मैं सड़ के मरांगा, दरअसल ये झूठ बोल रहे हैं, ये सड़ के नहीं, तुसी वेख लेना मर के सड़नगे। और जिहड़ी फेरूमान दे नाल
मुलाकात ना हो सकी। उसके बारे उन्होंने कहा, रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। पर इस दे विच सब तो गंभीर जिहड़ी गल है कि सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने लिखती तौर के उत्ते ऑडियो भी और लिखत विच भी अपनी वसीयत दस्खत करके 1 अगस्त को तैयार की, जिहड़ी कि उन्होंने सरदार महेंद्र सिंह खन्ना और बीबी निर्लेप कौर के हवाले की और उन्हां दी शहादत के दूसरे दिन अखबारां दे विच छपी। असी सब तो पहला तुहाडे नाल वो वसीयत सांझी जरूर करनी चाहांगे, जिहड़ी वसीयत और उसका एक एक अखर बहुत ही कीमती है, साडे इतिहास का एक दस्तावेज है। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने शहादत दिती अरदास की बेहुरमती जिहड़ी हुई और सिख होमलैंड की प्राप्ति लई, आज़ाद पंथ की आज़ाद हस्ती लई, सिख होमलैंड की प्राप्ति लई उन्होंने शहादत दिती। पर जिहड़ा मता पास किया गया उस दे विच कह दिता गया कि दर्शन सिंह फेरूमान चंडीगढ़ की खातर शहीद होए। उन्हां दी शहादत नूं रोलण दे तुल ये जिहड़ा मता सी, वो कह रहे हैं कि मैं पंथ की आज़ाद हस्ती लई, सिख होमलैंड की प्राप्ति लई मैं शहादत दे रहा हाँ। मैं अरदासां भंग कीते जाण लई, मैं हवन कुंड जिहड़े बनाए उहदे खिलाफ दे रहा। पर जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ने, क्योंकि उही धड़ा काबज सी जिन्हां ने ये सारा कुछ जिन्हां दी वजह करके होया, उन्होंने जिहड़ा जनरल इजलास विच मता पास किया उहदे विच ये लिखिया कि ये दर्शन सिंह फेरूमान चंडीगढ़ की खातर शहीद होए। पर बड़ी तसल्ली की गल है कि 2007 विच सरदार सुखदेव सिंह भौर जिहड़े जनरल सकत्तर हैं, उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इजलास विच मुड़ मता पेश किया कि वो जिहड़ा साडा 1969 वाला मता सी वो गलत सी, उसनूं दुरुस्त किया जाए। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह भी इतिहासक गल कही जाएगी कि वो मता मुड़ दुरुस्त किया गया। पर 1984 के बाद जिहड़ा वाइट पेपर श्रोमणी कमेटी ने छापिया उस दे विच भी यही लिख दिता गया कि दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत चंडीगढ़ के खातर हुई है। सिर्फ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने जिहड़ी किताब छापी है उस दे विच सही लिखिया है कि दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत सिख होमलैंड लई हुई सी। एक वक्फे दे बाद मुड़ हाज़र होवांगे, तुहानूं वो जिहड़े 2 दस्तावेज़ हैं, एक उन्हां दी वसीयत और एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मता, वो जरूर तुहाडे नाल साझे करांगे। गैर पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत श्रोता जनां दा वक्फे दे बाद निੱਘਾ स्वागत है। अज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम प्रोग्राम दे विच असी तुहाडे नाल शामिल हाँ। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत, अरदास की महत्ता, सिख होमलैंड की प्राप्ति, पंथ की आज़ाद हस्ती अते जिहड़े पंथ दे नाल धोखा किया गया उसके विरोध विच हुई सी। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो मता उस वेले 29 नवंबर 1969 के जनरल इजलास विच पास किया, सब तो पहला असी वो तुहानूं दसना चाहांगे और उहदे अखीर विच असी सरदार दर्शन सिंह फेरूमान की वसीयत तुहाडे रूबरू करांगे, जिहड़ा कि एक दस्तावेज़ है और ये दस्तावेजी प्रोग्राम है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल इजलास ने सर्बसम्मति नाल जो मता पास किया उसके लफज हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह जनरल समागम सरदार दर्शन सिंह जी फेरूमान दे चंडीगढ़ की प्राप्ति लई 74 दिनों के मरण वर्त पिछों शहीद हो जाण ते दुख का प्रगटावा करता है। अफसोस की गल है कि भारत की कांग्रेस सरकार वालों आज़ाद भारत विच भी इस देश के शहरियां नूं
इस तरह अपनी जायज़ ते हक्की मंग मनाउण लई आत्म बलिदान देण लई मजबूर किया जाता है। पर इस तो वध अफसोस और हासोहीणी गल कि जिस दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत संत फतेह सिंह दे उन्हां बार बार सड़ मरन दे जिहड़े उन्हां करके होई, उस दे विच फिर ये पास किया गया ये इजलास संत बाबा फतेह सिंह जी दियां पंजाबी सूबे की स्थापना ते इस नूं संपूर्ण करन अथवा चंडीगढ़ ते भाखड़ा दे पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ ਲਈ कीती कुर्बानी की शलाघा करदा है अते हुण नवें हालात विच ये शामिल किए जाण, नहीं तां बाबा फतेह सिंह जी वर्गे महान आगू ते देश भगत की कीमती जान बचा ली जाए। दर्शन सिंह फेरूमान जी की वसीयत बहुत ज़रूरी है जिहड़ी उन्होंने 1 अगस्त ਨੂੰ लिखी। उन्होंने कहा, मैं दर्शन सिंह फेरूमान गुरु पंथ अते देशवासियों अते सब संसार के भले नूं सज्जन पुरुषों नूं ये अपना अंतिम संदेश देना ते पहुँचाना चाहता हाँ। ये मेरा अंतिम संदेश जदों तक तुहानूं पहुँचेगा उस समय मैं संसार छड़ चुका होवांगा। अज 1 अगस्त 1969 ਨੂੰ मैं 85 वरियां की उम्र भोग चुका हाँ। बीती अद्धी सदी विच मैं पंथ की चढ़ती कला ते देश की आज़ादी लई घोल करता रहा। मेरा ये जीवन लोगों के सामने है। अज देश आज़ाद हो गया पर पंथ अजे भी पराधीन अते गुलाम है। देश विच धर्म की थावें भ्रिष्टाचार अते गिरावट वध गई है। पंथ की राजनीति अते गुरदामां उत्ते दंभी संत महंत अते पंथ के दोखी छा गए हैं। सिख धर्म के सिद्धांत खालसे दीआं रवायतां अते ਸਿੰਘਾਂ का इतिहासक गौरव पैरां हेठ रोल दिता गया। अकाल तख्त साहब के हजूर मरण वरत अते जिउंदे सड़ मरण के अरदासे करन वाले पखंड अते कायरता का राह फड़ के पंथ अते सिख धर्म अते पंजाब सरकार उत्ते पूर्ण तौर ते पक्का जफ्फा पाई रखण की साजिश विच कामयाब हो गए हैं। इस दंभ अते अधर्म नूं सिखां दा धर्म दर्शाउण लई श्री अकाल तख्त साहब के शरीक कुंड खड़े कर दिते गए हैं, जिन्हां नूं धक्के अते सरकारी शह नाल कायम रखा जा रहा है। पंथ की अधोगति अते अपमान जो अज हो रहा है अगे कदे नहीं होया। धर्म की दुर्दशा जो हुण की जा रही है पहले कदी नहीं हुई। सिख राजनीति विचों साधां महंतां ते कौम के गद्दारां ने सिक्खी नूं खारिज करन लई सिखां नूं दूजिआं दे गोले बनाउण दी साजिश पक्के तौर ते रच लई है। ये कूड़ दी मस्या ते दंभ दा जाल बिना सिर दित्तिआं दूर नहीं होना। ये अरदासे भंग करन दा पाप पंथ दे उठ खड़े होण दे राह विच वड्डी रुकावट है अते ये पाप बिना सीस दित्तिआं धोता नहीं जाना। अकाल तख्त दे शरीक संत फतेह सिंह अते उसके दंभी साथियों के नाम हेठां बनाए अग्नि कुंड पुकार पुकार के सिंघां कोलों आहुतियां मंग रहे हैं। गुरु अते अकाल पुरख तो भगौड़ा होकर पंथ बच नहीं सकेगा। जरूरी हो गया गुरु का सिंह अपना सीस दे के, कोई गुरु का सिंह अपना सीस दे के पंथ के अखौती लीडरां अते सिखां दे गद्दारां दे कीते पापां दा प्रायश्चित करे तां जो पंथ आज़ाद हिंदुस्तान विच आज़ाद पंथ अथवा सिख होमलैंड की स्थापति वाल अगला कदम चुक सके। इस निशाने की पूर्ति लई मैं अपना बलिदान देण लगा। संगत नूं मेरी बेनती संगतां नूं मेरी बेनती है कि मेरे पिछों अपना फर्ज पछाणन। मेरे मरण ते पिछों मेरे शरीर नूं संत फतेह सिंह दे नाम हेठां बनाए अग्नि कुंडां विच रख के फूक दिता जाए अते मेरियां अस्थियां कीरतपुर साहब पहुँचा दित्तियां जाण। पंथ दे मसंदां ते धर्म दे दोखियां नाल यथा योग सलूक किया जाए अते श्री अकाल तख्त उत्ते बने हुए दंभ अते पखंड दीआं निशानियां अग्नि कुंड ढा दिते जाण, क्यों जो ये गुरमत विरुद्ध हन अते पंथ दे उजले मूँह ते कलंक हन। संगतां अरदास करन कि साहिब दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी मेरी तुच्छ कुर्बानी कबूल कर लैण अते अपनी पंथ की बौड़ी करन। संपूर्ण पंजाब जिंदाबाद, सिख होमलैंड अमर रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु संगतां दा दास दर्शन सिंह फेरूमान। ये दस्तावेज़ है, तुसी अपने विचार जरूर लिख भेजो। तुहाड़ियां कॉल्स नहीं लै सके, सानूं अफसोस है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।